I just got back home. I was out for some work and I was at a bus stop waiting for the bus, ठीक है. And एक couple मेरे बाजू में था and कुछ तो उनके बीच में चल रहा था argument and मस्ती मजाक में उसने उसको देख के बोलता है कि यार एक तो तू दिन भर दिन भैंसा बनते जा रही है, फैलते जा रही है, you know, अभी तो कुछ टाइम में तू तो बहुत expired दिखने वाली है, जिम जा, ये कर वो कर. And I felt so bad because तभी तुरंत मैंने वो लड़की की तरफ देखा एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी फेल्ट फर्दर एम्बैरेस्ड एंड देन शी टोल्ड हिम समथिंग, कुछ तो चिल्ला विल्ला के वहां से चली गई एंड ही इज लाफिंग. ओके, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, चल तेको एक और बर्गर खिला दूंगा. एंड आई वाज लाइक, भाई बॉडी शेमिंग आजकल इतना कैजुअल हो गया है क्या कि तुम कुछ भी बोल रहे हो. लाइक आई अंडरस्टैंड, अब तुम लोग मुझ पे अटैक मत करो ये बोल के यार वो तो उनका लव लैंग्वेज है. तरीका होता है यार, यू can't just say such things and be like अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुंह से निकल गया. यू नो, बुरा मत मानना. क्यों बुरा नहीं मानना चाहिए? मैं तो बुरा मानूंगी ब्रो. It's just so weird that you cannot say such things so casually. And then while I was coming back and abhi tak, okay, till this moment I was just thinking, okay, I mean that incident jo unke beech mein hua made me relive all the moments that have happened in my life, in my friends life, and I just thought ki kitne sare comments hai jo logon ke muh se nikalta hai and that kind of leaves a permanent scar on people, you know, like they next time उन लोग मिरर में जाके वही चीज देखेंगे. like अगर किसी ने तुम्हारे कुछ पेट के बारे में बोल दिया, हाथ के बारे में बोल दिया, you may not be conscious about it but the next moment you will be conscious. I will give you a personal example. You can see this, right? I've spoken about this a bit in my other videos also. I've also made a reel on this. You can see this, these are my necklines. ये मुझे बचपन से, ठीक है. like if I show you my first standard or even my junior KG का बच्चा, I have these lines. It's genetics. Even my mom has it, even my granny has it, all my maternal cousins have it, okay. and मुझे कभी इससे इनसिक्योरिटी नहीं हो. जैसा मेरा वेट लॉस होता है, दिस लुक्स अ बिट मोर स्नैच. जब वेट गेन होता है ये ज्यादा होता है, ठीक है. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन, you guys won't believe me. I wish I could find the screenshots, but देख मेरे दिमाग में अभी भी वो permanently याद है. okay, कल क्या खाया होगा मुझे वो याद नहीं रहेगा, but this it is like permanently, like क्या बोलते हैं उसको, ingrained या engraved in my brain. okay, I remember there were these people comments में मुझे बोलते थे कि यार please like look at your necklines, it looks very abnormal. and I'll tell you something, okay, direct insult नहीं होता है, it backhand compliment देता है. for those of you who do not know what backhand compliment is, उन लोग तारीफ में एक insult छुपा के रखता है. तो one of the backhand compliments that I got was, you have a very pretty face, just work on your neck, okay, do what is that, gua sha, all that massage and everything, and you know, try getting your thyroid checked or you know, get some lasers done because it looks very abnormal, else you're very pretty. and एक बार मैंने ignore कर दिया, ठीक है. second time वापस कोई बोल रहे थे कि oh you look very pretty but just get your thyroid checked, this doesn't look normal. third time किसी ने मुझे DM करके बोला कि bro this it's not normal, these lines, it is because of turkey neck, tech neck, क्या लौड़ा लहसुन neck, मेरे को नहीं पता भाई, and just get it checked. अब इतने सारे लोगों ने मुझे बोल दिया, आई थॉट ब्रो समथिंग माइट रियली बी रॉन्ग विद मी. आई गॉट सो पैरानॉइड, आई वेंट एंड गॉट माय थायराइड चेक्ड एंड एवरीथिंग, ओके. एंड बैक देन आई डिड नॉट हैव अ थिक स्किन, you know, for all these internet trolls and all these backhanded compliments. and doctor was like nahi hai bhai, thyroid, touch wood. and my mom was like, are you crazy, why would you do that, this is something which is genetics, देखो बचपन से देखो अभी ये डेवलप नहीं हुआ. and you guys won't believe me, for the next 2 months मैं पागल हो गई. I saw all the possible neck massage videos कि ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नीचे नहीं देखना चाहिए उल्लुओं की तरह, एंड गुआशा करो. एंड इतना मैंने पागल जैसा गुआशा किया कि मेरे यहाँ पे पूरा रेड रैशेस हो गया था. एंड आफ्टर पॉइंट माय फ्रेंड, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद एंड शी वाज लाइक, तू क्यों कर रही है ये सब, तुझे बचपन से मैंने नोटिस तक नहीं किया जब तूने बोला. इट इज वेरी नॉर्मल, मेनी पीपल हैव दिस काइंड ऑफ नेक. एंड आई वाज सीइंग ऑल दीस वीडियोस, ओके, एंड देयर वर ऑल दीस गर्ल्स जो ना क्या टेप लगा रहे, कपड़ा लगा रहे सोने से पहले. मैं बोली मैं ये सब करूंगी. एंड देन एक रियलाइजेशन हिट हुआ मुझे कि जस्ट बिकॉज आई गॉट 3 comments where people are telling me this, I got crazy, you know, I got so insecure. and इतने साल जब से मैं पैदा हुई हूँ अभी तक मेरे को कभी इस चीज की इनसिक्योरिटी नहीं हुआ. and that's when I was like, it's so casual, you know, you can just casually go and body shame someone or you know, like give a backhanded compliment. and
वो बंदे के दिमाग में रह जाएगा, and then that person is gonna get insecure and crazy, you know. अब मेरा हेल्थ हिस्ट्री कैसा है, you know, I have PCOS, okay, and PCOS की वजह से मुझे बहुत तगड़ा वाला इन्फ्लेमेशन एंड ब्लोटिंग होता है, ठीक है. I started going to the gym 2 years ago because, you know, I've mentioned this in my another video also, तो बहुत shortly मैं बोलूंगी कि मैं जिम जाना क्यों स्टार्ट की, because 2.5 years ago मेरे पीरियड्स रिलेटेड मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो गया था, जब पे मुझे ऑलमोस्ट 9 months के लिए पीरियड्स नहीं आता, and I almost gained 15 kgs more, okay, and डॉक्टर वाज लाइक डाइट वाइट चेंज करना पड़ेगा एंड थोड़ा जिम विम जाके यू नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, घर पे योगा करो, ओके, एंड दैट वाज द रीजन आई स्टार्टेड इट, ओके, एंड ट्रस्ट मी इन 2.5 years, yes, my health is much better, touch wood, and I feel good and I look good, okay, and I'm not promoting obesity, I'm not saying कि भाई बस बैठो एक्टिव मत रहो, बस खाओ 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 और वेट गेन करो, नहीं, I'm telling you जाओ वर्कआउट करो, go for a run, go for a walk, lift weights, do yoga and everything, but कभी कभी क्या होता है ना, डिस्पाइट डूइंग ऑल दिस, कभी कभी तुम्हारा बॉडी कंप्लीटली यू नो वो तुम्हारा टारगेट वेट नहीं पहुंच सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस, यस, आफ्टर हिटिंग द जिम आई हैव लॉस्ट वेट, आई एम ईटिंग क्लीन, कभी कभी ओकेशनल जंक एंड एवरीथिंग, बट अगर मैं 3 दिन में जिम नहीं जाती हूँ बिकॉज ऑफ माई पीरियड और बिकॉज ऑफ माई फीवर, बिकॉज ऑफ माई इन्फ्लेमेशन एंड एवरीथिंग, मैं वापस से बहुत ब्लोटेड लग जाती है. दैट मीन्स अगर मुझे 1 महीना लगा टू लुक मोर लीन एंड स्नैच्ड एंड यू नो ऑल दैट, 3-4 दिन में वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है. एंड ये आई कांट एक्सपेक्ट पीपल टू अंडरस्टैंड, ओके, सो दे विल स्टार्ट अगेन से कि क्या यार तो थोड़ा खाना कम कर. खाना कम सोल्यूशन थोड़ी ना होता है यार, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. आई एम ऑलरेडी ईटिंग क्लीन, आई एम नॉट गोइंग टू ईट लेस जस्ट बिकॉज यू आर टेलिंग मी, आई एम नॉट गोइंग टू ईट only one meal just because you are telling me to eat. Because क्या होता है जब लोग ऐसा बोलते हैं ना, ओ यहाँ पे चर्बी बढ़ गया, यहाँ पे चर्बी बढ़ गया, यहाँ पे चर्बी बढ़ गया, you get very conscious, okay, and the next time when you're eating that one piece of cake, इतना ज्यादा गिल्ट फील होता है कि नेक्स्ट दिन तुम जिम में जाके 3 घंटा भागोगे, क्या ही फायदा होता है. लाइक आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली जंक खाओ, बट ओकेजनली एंजॉय योर मील्स एंड डोंट लेट दीज पीपल इफेक्ट यू. ट्रस्ट मी, मेरे को भी होता है इफेक्ट, बट धीरे धीरे यू हैव टू गेट ओवर इट, वरना जी नहीं पाओगे, ओके. एंड ऑल्सो दीज पीपल ना, इट्स नॉट जस्ट फैट शेमिंग, ओके, इन लोग क्या बोलते थे, दे डोंट इवन लीव लीन गर्ल्स, ओके, उनको भी बोलेंगे यार इतनी दुबली है, हाथ देख क्या लकड़ी जैसा हो गया है, फूक मारा तो उठ जाएगी, थोड़ा और खाया कर, कितना कम खाती है. बाय व्हाट इफ शी इज ईटिंग मोर देन एनीवन बट स्टिल शी इज नॉट एबल टू गेन वेट. यस, शी कैन डेफिनेटली गो टू द जिम, गेन सम मसल मास एंड एवरीथिंग, बट मेरी एक फ्रेंड है, ओके, शी वेंट टू द जिम, अच्छा प्रोग्रेस हुआ, अच्छा खासा उसने मसल मास गेन किया, बट बीच में शी फेल सिक एंड 2 weeks शी कुड नॉट गो टू द जिम, तो तभी उसका थोड़ा सा और वेट ड्रॉप हुआ. दैट्स व्हाट हैपेंस. अब मेरे केस में मैं जिम नहीं जाऊंगी तो मेरा वेट तुरंत गेन होता है, इनके केस में अगर इन लोग जिम नहीं जाते तो उनका तुरंत वेट लॉस होता है. डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट थिंग्स, यू नो. एंड देन उसको वापस कोई ना कोई उसका घर वाले बोलते हैं, अरे यार कितनी दुबली हो गई, और खा और कितना खाएगी भाई वो. एंड इवन यू नो you might have noticed when it comes to these arranged marriage rishtas and all, okay, this has happened personally with me and my cousin, so I can tell better about it, okay, and even with men it happens, okay. मेरे एक colleague, okay, like he was losing hair, okay, तो उसको ऐसा बोल रहे थे कि आप जाके hair transplant करवाओ, आपको rejection मिल रहा है क्योंकि आपके सर में बाल नहीं है, आप गंजे हो, ये वो. I understand सबका physical preferences होता है, but खुद के घर वाले ही ना तुमको बोल के they will make you insecure about it, you know. Like मेरे केस में मेरे को और मेरी cousin को बार-बार बोलते हैं कि oh, like you know, you got lose some weight, like lose it. We're already going to the gym 5 times, we are restless, sleep deprived, eating less, तभी वैसा होता था, and still बोलते नहीं weight lose करो वाला रिश्ता नहीं आएगा. अब बोले माँ चोदाओ, मेरे को तो रिश्ता चाहिए भी नहीं, ठीक है. So this has become very common, you know, and it's so funny that people think that उन लोग out of concern बोल रहे. This is not concern, okay, this is straight away controlling, okay, because अगर concern होता, like for example if I see my friend and I see that she has put on a few kilos, I won't go and directly say कि भाई तेरा वेट बढ़ गया है. वो अंधी नहीं है, उसको दिख रहा है कि उसका वेट बढ़ गया है. I will just go and ask her first कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, are you stressed about something, are you indulging in like you know क्या बोलते हैं वो binge eating, क्या चल रहा है. Then she will tell me कि नहीं भाई ये चल रहा है. तो मैंने बोला कि okay, so what do you want to do about it. Then she will tell कि हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि I've gained weight. I'll be like okay, that's not a problem, you can lose it. And then मैं उसको बोलूंगी चल ठीक है भाई, मैं ये सब वर्कआउट करती हूँ, तू भी होगा.
ऐसा go and ask. First ask कि what is the reason, what is happening. Not directly go to तेरी शक्ल पे एक्ने आ गए, तू गंजी हो रही है, तू पतली दिख रही है, तू मोटी दिख रही है. चूतिए है क्या लोग? I have two friends, okay, and both of them, they are like on their fitness journey and they want to lose some fat and they want to get more, more toned and everything, okay. मेरी एक friend है, I was telling her that day that bro तू sleeveless क्यों नहीं डालती है, because when we are doing upper body बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे वो, फील हो रहा है एंड एवरीथिंग, तो यू शुड डू दैट. एंड शी वाज लाइक नहीं यार मैं स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ. ऑब्वियसली शी डिडंट टेल मी द अंडरलाइंग थिंग, व्हाई शी डजंट वांट टू वेयर इट. फिर मेरी एक और फ्रेंड है, शी टोल्ड मी दैट एंड आई वाज लाइक व्हाई आर यू नॉट वेयरिंग स्लीवलेस. सो शी लाइक नहीं यार मेरे आर्म्स बहुत मोटे मोटे हैं, मेरे अंडर आर्म्स में बहुत फैट है एंड लाइक आई हैव हेवी बस्ट सो आई अवॉइड वेयरिंग टाइट टॉप्स एंड स्लीवलेस एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज लाइक व्हाई. एंड शी वाज लाइक यार मेरे कुछ दोस्त लोग, मेरे एक दो एक्सेस, मेरी आंटी लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि यार बेटा आपका बस्ट थोड़ा हेवी है तो आप टाइट मत पहनो, डीप नेक मत पहनो, स्लीवलेस मत पहनो, आर्म्स बड़े हैं. एंड द मिनट any curvy girl or any plus size woman they start wearing something tight and if they have a bigger bust, बोलते यार कितना वल्गर दिख रहा है, ये अपने बॉडी के हिसाब से चीजें क्यों नहीं पहन रही है. बॉडी उसको पसंद आया, व्हाट इफ शी रियली लाइक्स इट एंड शी इज कॉन्फिडेंट वेयरिंग दैट, तो फिर किसी के बाप का क्या जा रहा है, राइट. सो these things are very bad, I mean I know, okay, अब मैं 2 साल से जिम कर रही हूँ and I don't know what people expect. Now I have a pear shaped body, okay, तो मतलब मेरा bottom is broad and I am a broad person, okay, I am not very skinny, that is my body type, okay. Oh my god guys, you won't believe me, there are people telling me what, यार तू 2 साल से जिम कर रही है फिर भी broad दिख रही है, तगड़ी दिख रही है, मतलब बुरा मत माना, अभी तक तो तू मॉडल जैसी दिखनी चाहिए. बट मेरा बॉडी मॉडल जैसा है ही नहीं, तो मैं मॉडल जैसे क्यों दिखूं भाई. अगर मेरा बॉडी नहीं अगर मेरा बॉडी ब्रॉड है मैं तो ब्रॉड ही दिखूंगी ना. आई विल ऑब्वियसली लूज फैट हियर एंड देयर, बट इफ माय फिजिक इज दिस आई विल लुक लाइक दैट और आई कांट लुक लाइक दैट. आई मीन who are going to explain these people? I don't understand, okay. एक बार मुझे अभी भी याद है, मेरा एक cousin, okay, he's lean, okay, and he's young now, okay, so he doesn't want to hit the gym now, he wants to go gym later. भाई उसको भी नहीं छोड़ते, बोलेंगे अरे खाता नहीं है, पहले अभी पतला ही था, अभी भी ऐसे ही है क्या, किधर जाते खाना. मजाक है क्या भाई? I mean, I really want to know if both the sides of people are watching this, the one who are making such comments, do you guys really think this is funny? अब तुम बोले नहीं हम तो रोस्ट करते हैं यार, मजाक मस्ती तो चलता ही है, don't brainwash people. यार मजाक, अगर मजाक है ये चीज तो वो मजाक लगना चाहिए ना. Why does it look like an insult, which is what do we say, compliment disguised as insult? ऐसा क्यों लग रहा है? फिर मजाक तो मजाक ही लगना चाहिए. ये सब चक्कर में I remember once that time I was also doing like acting theaters and I used to do this modeling and everything. Oh my god, मैं इतनी brain wash हो गई थी ये सब सुन के, मेरे को लगा नहीं भाई मेरा ये जो broad body है इसमें कुछ तो issue है, I should not be like that. I stopped eating. मैं एक ही दिन में एक ही बार खाना खाती थी, ये वो खाती थी, इतनी पतली हो गई, जॉलाइन आ गया, नेक स्नैश हो गया, कमर पतला हो गया. एंड तब पीपल बोले ओ वाओ तो मॉडल जैसे दिखते हैं, ये वो रहा. ओहो रियली क्या फायदा, मैं तो हेल्दी हूँ नहीं. अभी एटलीस्ट मैं जिम जाती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, जो भी आई एम हैप्पी विद माई बॉडी बिकॉज आई एम ईटिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग हेल्दी, माई पीरियड्स आर रेगुलर नाउ. तो अभी तो मेरा बॉडी हेल्दी भी नहीं था. एंड अगेन उसमें कुछ छिरकट छूते लोग रहेंगे, बोलेंगे तो पहले ना थोड़ी छवि अच्छी दिखती थी, अभी ना बहुत कुपोषित लग रही है. भाई तो इंसान करे तो क्या करे? दैट्स व्हेन आई वाज लाइक भाई मेरे को इनके हिसाब से जीने का ही नहीं है. इन लोग मुझे 10 चीज बोलेंगे, भौंकते रहेंगे, भौंकने दो. आई विल हिट जिम फॉर माई सेल्फ एंड मैं तुम लोग को भी वही बोलूंगी, डू योगा. सी डूइंग जिम एंड योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं मोस्टली मैं हर वीडियो में बोलती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा जो ताकत बढ़ेगा, यू विल फील गुड, ओके. तुम्हारा इम्यूनिटी अच्छा होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है. इम्यूनिटी अंदर से तुम बेटर फील करते हो, मेंटली तुम बेटर फील करते हो. बट डोंट वर्क आउट और डू योगा जस्ट बिकॉज सम पीपल टोल्ड यू कि खाना कम खाओ या फिर बहुत मोटी दिख रही हो. आपको लगता है, देखो फिट रहना इज नॉन नेगोशिएबल, यू गॉट बी फिट, ओके. बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मुझे थोड़ा और, मुझे लाइक अगर आपका गोल है कि नहीं भाई मुझे थोड़ा और लीन होना है, आई थिंक इफ आई लूज मोर फैट आई विल फील बेटर, आई विल फील मोर कॉन्फिडेंट, और इफ आई गेन मोर मसल मास आई विल फील बेटर, आई फील मोर कॉन्फिडेंस. इफ आई डू योगा मेरा स्ट्रेस एंजाइटी बेटर होगा. डू इट फॉर योर सेल्फ, ओके. बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइज, मेरे साथ भी ये
हुआ है, I will listen to somebody telling something about my tummy, about my waist, and the next day मैं पागल है जिम में जाके 2 घंटा भागूंगी, क्या फायदा उससे, मेरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, मेरे को चक्कर वक्कर आ जाएगा. So don't do it for anybody else, do it for yourself because you want to feel healthy, you want to look healthy, mind wise, body wise, internally and everything. ये सब चीज में क्या फनी होता है ना, आधे तो अपने सर्कल में लोग रहते हैं, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, जो ये सब बकचोदी करते रहते हैं कि हाँ मोटी हो गई, हाँ पतली हो गई है, एंड तुम अगर कम बैक देने जाओ, इफ यू कॉल देम आउट ऑन दिस बुलशिट, इफ यू टेल देम दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट हाउ यू स्पीक, घूम फिर के दे विल कॉल यू ओनली सेंसिटिव. ओ कितनी ड्रामेटिक हो रही है, ओ कितनी सेंसिटिव हो रही है, हम तो तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं. कहाँ से अच्छे के लिए बोल रहे हो तुम? यू आर लेजेंड मेकिंग फन ऑफ मी, यू आर इंसल्टिंग मी बिकॉज यू वांट टू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ बिकॉज योर लाइफ इज pathetic. Maybe your husband doesn't love you, maybe your kid doesn't love you, maybe your mother doesn't love you, or maybe you don't love yourself, so you want to project that insecurity onto others. Okay, so stop doing that. देखो भाई simple है, okay, you do not owe anybody a flat stomach or like, you know, a 20-inch waist or something like that. You do not owe anybody this Victoria's Secret body. Simple है, you owe yourself peace, you owe yourself a healthy body, okay, a healthy mind, okay, and do whatever it takes to achieve that, okay, but do not do it for the sake of these चिरकुट people, क्योंकि इन लोग, तुम कुछ भी करो, इन लोग का मुंह बंद नहीं रहने वाला है, okay, तो ऐसे लोग के लिए ना उल्टा जवाब देना ही चाहिए. I'm telling you, उल्टा जवाब दो इनको, but if sometimes you feel like नहीं यार इन लोग तो भौंकते रहेंगे, इन लोग के साथ भौंक के हमारा भी एनर्जी वेस्ट होगा, just get up and go. Do not be in a place where people don't respect you. अब ये मत बोलना कि भाई सोनाली how can I do that because मेरे तो घर वाले ऐसा करते हैं. अगर घर वाले ऐसा करते तुमको बोलो कि मत किया करो ये सब, और just like get out of that situation for a while. कितना बार ऐसा हुआ है कि मेरे मतलब my family is very supportive, my parents they are like love, okay, but कितना बार ऐसा हुआ कि मेरे relatives ने कुछ बोला है, कभी मैंने उनको सुना दिया है मेरी मूड के ऊपर, एंड कभी कभी मेरे को लगा यार fuck, who the fuck is gonna argue with these people, and I just got up and went because मेरे को मेरा mental peace protect करना था, okay, so just do that. And also let me know in the comments, you know, what is that one thing people told you casually but that left like a permanent scar in your mind, and what was that one funny line that later on became your insecurity, and what are you doing, you know, to work towards it, because I'm telling you वो insecurity कभी दिमाग से completely जाता नहीं है. मुझे अभी भी थोड़ा बहुत consciousness feel होता है, but I actively fight against it, you know, I actively remind myself कि नहीं भाई ये मेरा neckline है, ये मेरा पहचान है, okay, this is my uniqueness and it's better to look unique than look same, you know, by doing multiple things. I mean obviously I'm not saying कि मत करो, जो करना है करो, but do it because you want to do it, do not do it because others are telling you to do it, okay? And yes, with that I would say thank you so much for watching. I really wanted to talk about it and vent it out because when I saw that couple and when I saw that idiot, पहले तो मेरे को मन किया कि चप्पल फेंक के उसको मारूं, but then वो मेरे से डबल साइज में था, वो 2 थप्पड़ मारकर मैं तो गिरी जाती, but that's when I was like I have to talk about it, you know. So yeah, thank you so much for watching. I will see you again in the next video. Bye bye.